हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को मेरा फार्मा क्वेश्चन आंसर की चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायबिटिक ड्रग्स 100 MCQs, ए कंप्लीट सेट ऑफ 100 फार्माकोलॉजी MCQs ऑन डायबिटिक ड्रग्स सुइटेबल फॉर ESI फार्मासिस्ट, OSSC फार्मासिस्ट, DSSSB फार्मासिस्ट, AIMS, NHM, GPAT, D Pharma and B Pharma exam preparations. So let's start. Question number 1. Which drug is the first line treatment for type 2 diabetes mellitus? A. Glibenclamide, B. Metformin, C. Insulin, D. Pioglitazone. इसका सही आंसर होता है B. Metformin. एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। Metformin is the first choice of drug because it reduces hepatic glucose production and improves insulin sensitivity without causing weight gain. Question number 2. Metformin belongs to which class of anti-diabetic drug? A. Sulfonylurea, B. biguanide, C. DPP-4 inhibitor, D. SGLT2 inhibitors. इसका सही आंसर होता है बाइग्वानाइड्स। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। मेटफॉर्मिन इज द ओनली बाइग्वानाइड currently used in clinical practices. Question number 3. Which drug stimulate insulin release from pancreatic beta cells? A. Metformin, B. Glimepiride, C. Acraboz, D. Empagliflozin, D. Empagliflozin. इसका सही आंसर होता है ग्लिमिप्राइड। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। ग्लिमिप्राइड इज ए सल्फोनाइल यूरिया दैट इंक्रीजेस इंसुलिन सिक्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4. Which anti-diabetic drug commonly causes hypoglycemia? Metformin, glibenclamide, Acraboz, sitagliptin. इसका सही आंसर होता है glibenclamide। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। सल्फोनाइल यूरिया increases insulin release and can cause hypoglycemia. Question number 5. Which insulin has the fastest onset of action? Regular insulin, insulin lispro, NPH insulin, insulin glargine. इसका सही आंसर होता है इंसुलिन लिस्प्रो। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। लिस्प्रो इज ए रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग। क्वेश्चन नंबर 6. व्हिच इंसुलिन इज लॉन्ग एक्टिंग? लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लार्जिन, रेगुलर इंसुलिन। इसका सही आंसर होता है ग्लार्जिन। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। इंसुलिन ग्लार्जिन provides a prolonged basal insulin effect. Question number 7. Which drug inhibits intestinal alpha glucoside enzymes? Pioglitazone, Acraboz, sitagliptin, rapaglinide. इसका सही आंसर होता है Acraboz. Acraboz delays carbohydrate absorption, reducing postprandial glucose. Question number 8. Which drug class increases urinary glucose excretion? Sulfonylurea, SGLT2 inhibitor, DPP-4 inhibitors, biguanides. इसका सही आंसर होता है SGLT2 inhibitors. एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। These drugs block glucose reabsorption in the kidneys. Question number 9. Empagliflozin belongs to which class? DPP-4 inhibitor, SGLT2 inhibitor, sulfonylurea and biguanides. इसका सही आंसर होता है SGLT2 inhibitor. Empagliflozin promotes urinary glucose excretion. Question number 10. Which DPP-4 inhibitor is commonly used? Sitagliptin, Pioglitazone, Metformin, glibenclamide. तो सही आंसर होता है sitagliptin. Sitagliptin prolongs incretin activity and increases insulin secretion.
Question number 11. Pioglitazone belongs to sulfonyl urea, thiazolidinone, biguanides, meglitinides, thioglitazolidine. It improves insulin sensitivity by activating PPAR gamma receptors. Question number 12. Major adverse effect of pioglitazone is hearing loss, fluid retention, dry cough, constipation. इसका सही आंसर होता है fluid retention. It may worsen heart failure due to edema. Question number 13. Which drug is contraindicated in severe renal failure? Metformin, acrabose, sitagliptin, pioglitazone. इसका सही आंसर होता है मेटफॉर्मिन. एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे. इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस इन सीवियर रेनल इम्पेयरमेंट. क्वेश्चन नंबर 14. व्हिच हार्मोन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज? ग्लूकागॉन, कोर्टिसोल, इंसुलिन, एड्रेनालिन. इंसुलिन. एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे. इंसुलिन प्रोमोट्स ग्लूकोज अपटेक बाय टिश्यू. क्वेश्चन नंबर 15. व्हिच इंसुलिन इज इंटरमीडिएट एक्टिंग? एनपीएच इंसुलिन, लिस्प्रो, ग्लार्गिन, एस्पार्ट. इसका सही आंसर होता है एनपीएच इंसुलिन. NPH insulin has an intermediate duration of action. Which drug may cause lactic acidosis? Metformin, glimepiride, sitagliptin, acrabose and metformin. इसका सही आंसर होता है metformin. Metformin lactic acidosis is a rare but serious adverse effect होता है metformin का. Question number 17. Which anti-diabetic drug commonly causes weight gain? Glibenclamide, metformin, empagliflozin, acrabose. इसका सही आंसर होता है ग्लिबेनक्लामाइड. सल्फोनाइल यूरिया में कॉज बोथ वेट गेन एंड हाइपोग्लाइसीमिया. क्वेश्चन नंबर 18. Which drug is useful in reducing postprandial hypoglycemia? Acrabose, glargine, metformin, pioglitazone. Acrabose is the answer of this question. It delays carbohydrate digestion and absorption. Question number 19. Which drug is preferred in obese patients with type 2 diabetes? Metformin, glibenclamide, pioglitazone, NPH insulin. इसका सही आंसर होता है metformin. Metformin, it is weight natural or may promote modest weight loss. Question number 20. HbA1c reflects average blood glucose over approximately 1 week, 1 month, 2 to 3 months, D 1 year. इसका सही आंसर होता है 2 to 3 months. HbA1c reflects long-term glycemic control over the lifespan of red blood cells. Question number 21. Which oral anti-diabetic drug should be taken with meals to reduce gastrointestinal side effects? Metformin, glimepiride, sitagliptin, empagliflozin. इसका सही आंसर होता है metformin. Taking metformin with food reduces nausea, diarrhea and abdominal discomfort. Which sulfonyl urea has the longest duration of action? Tolbutamide, glibenclamide, gliclazide, glipizide. इसका सही आंसर होता है glibenclamide. Glibenclamide is long acting and has a higher risk of hypoglycemia. Rapaglinide belongs to which class? Biguanide, metformin, biguanide, meglitinide, DPP-4 inhibitor, SGLT2 inhibitor. इसका सही आंसर होता है meglitinide. Meglitinide stimulates rapid insulin release and are taken before meals. Question number 24. Which drug is associated with genital fungal infections? Metformin, empagliflozin, sitagliptin, acrabose.
इसका सही आंसर होता है empagliflozin. SGLT2 inhibitors increase urinary glucose, predisposing to genital infections. Question number 25. Which insulin can be administered intravenously in diabetic ketoacidosis, जिसको बोलते हैं डीके, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस? ग्लार्गिन, लिस्प्रो, regular insulin, NPH insulin. Regular insulin. IV regular insulin is the standard treatment for decay. Question number 26. Which oral anti-diabetic drugs should not be used in type 1 diabetes? Metformin, sulfonylurea, pioglitazone and all of the above. इसका सही आंसर होता है all of the above. Type 1 diabetes requires insulin because of absolute insulin deficiency. इसमें मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइलयूरिया, पायोग्लिटाजोन सभी को यूजफुल होता है. क्वेश्चन नंबर 27. Which DPP4 inhibitor is commonly prescribed once daily? Sitagliptin, Voglibose, ग्लिबेनक्लामाइड, अक्राबोज. इसका सही आंसर होता है सीटाग्लिप्टिन. Sitagliptin improves incretin activity and is usually given once daily. The main action of metformin is to increase insulin secretion, decrease hepatic glucose production, increase glucagon secretion, delay insulin degradation. इसका सही आंसर होता है decrease hepatic glucose production. एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं. Metformin primarily suppresses liver glucose output. Question number 29. Which drug improves insulin sensitivity by activating PPAR gamma receptors? Pioglitazone, glimepiride, sitagliptin, carapaglynide. का सही आंसर होता है pioglitazone. Pioglitazone is a thiazolidinol. Which anti-diabetic drug commonly causes flatulence? Acraboz, glimepiride, insulin glargine, sitagliptin. इसका सही आंसर होता है acraboz. Fermentation of undigested carbohydrates causes gas and bloating. Which insulin has no pronounced peak? NPH insulin, glargine, regular insulin and lispro. Glargine. Glargine provides a steady basal insulin level. Question number 32. Sulfonylureas act by closing calcium channels, potassium, KATP channels, ketoacidosis transphosphate channels, sodium channels, chloride channels. इसका सही आंसर होता है पोटेशियम कीटोएसिडेस ट्रांस पोटेशियम चैनल्स. क्लोजर ऑफ कीटोएसिडोसिस ट्रांस पोटेशियम चैनल्स depolarized beta cells triggering insulin releases. Question number 33. Which SGLT2 inhibitor has proven cardiovascular benefit? Empagliflozin, tolbutamide, pioglitazone, clopropamide. Empagliflozin, it reduces cardiovascular death in many patients with type 2 diabetes mellitus. Question number 34. Which insulin should never be mixed with other insulins? Regular insulin, glargine, NPH insulin and lispro. ये ग्लार्गिन होता है जो किसी से भी मिक्सिंग नहीं हो सकता. Mixing alters its prolonged release characteristics. Question number 35. Which drug delays gastric emptying and promotes weight loss? Liraglutide, glibenclamide, metformin, acraboz. Liraglutide. Liraglutide is a GLP-1 receptor agonist. Which class has the lowest risk of hypoglycemia when used alone? Metformin, sulfonylurea, insulin, meglitinides. Metformin.
इसका सही आंसर होता है मेटफॉर्मिन। इट डज नॉट डायरेक्टली स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशन। Which insulin is classified as rapid acting? Aspart, NPH, Glargine and Ditemir. Aspart. Aspart has a rapid onset and is given before meals. Which laboratory test is used to monitor long-term glucose control? Random blood sugar, fasting blood sugar, HbA1c and urine glucose. इसका सही आंसर होता है HbA1c. HbA1c reflects average glucose over the previous 2 to 3 months. Which oral antidiabetic drug is most likely to cause hypoglycemia? Metformin, glimepiride, acarbose and sitagliptin. Glimepiride. Sulfonylureas increases insulin secretion regardless of blood glucose level. Which of the following is a GLP-1 receptor agonist? Liraglutide, sitagliptin, metformin, empagliflozin. Liraglutide, GLP-1 receptor agonist, increases insulin secretion, suppresses glucagon, delay gastric emptying and often promote weight loss. 21 डाइक्लोफेनाक किस क्लास की ड्रग है? एनएसएआईडी, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, एंटीवायरल। इसका सही आंसर होता है एनएसएआईडी। डाइक्लोफेनाक एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है जो पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 82 कौन सा विटामिन नर्व फंक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है? विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के। इसका सही आंसर होता है विटामिन B1, थायमिन। विटामिन B1 की कमी से बेरी और नर्व डैमेज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 83 सिप्रोफ्लोक्सासिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सेल वॉल सिंथेसिस रोकता है, डीएनए गायरेज को इनहिबिट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है, फॉलिक एसिड सिंथेसिस रोकता है। इसका सही आंसर होता है डीएनए गायरेज को इनहिबिट करता है। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। सिप्रोफ्लोक्सासिन बैक्टीरियल डीएनए रिप्लिकेशन को रोकता है। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है? थाइमस, स्प्लीन, लीवर, टॉन्सिल। इसका सही आंसर होता है स्प्लीन। स्प्लीन सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन होता है और इम्यूनिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 85 वार्फारिन का एंटीडोट क्या है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी और कैल्शियम। इसका सही आंसर होता है विटामिन के। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। विटामिन के वार्फारिन के एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट को रिवर्स करता है। क्वेश्चन नंबर 86 नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कितना होता है? 70 से 99 mg पर डीएल, 120 से 180 mg पर डीएल, 200 से 250 मिलीग्राम पर डीएल, 40 से 60 मिलीग्राम पर डीएल। इसका सही आंसर होता है 70 से 99 mg पर डीएल होता है। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। हेल्दी अडल्ट में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 से 99 mg डीएल तक होता है। अल्बेंडाजोल किस टाइप की ड्रग है? एंटी हेलमिथिक, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, एंटीवायरल। इसका सही आंसर होता है एंटी हेलमिथिक। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। अल्बेंडाजोल पेट के कीड़े वर्म्स के ट्रीटमेंट में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 88 ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? टिबिया, हिमरस, फीमर, रेडियस एंड फीमर। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। फीमर जो थाई बोन होता है शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 89 अमोक्सिसिलिन और क्लाभेंचुनिक एसिड का कॉम्बिनेशन किस लिए दिया जाता है? इसको क्यों दिया जाता है? बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के खिलाफ होता है और वायरल इन्फेक्शन के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए और पेन रिलीफ करने के लिए। इसका सही आंसर ये होता है बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के खिलाफ होता है। क्लाभेंचुनिक एसिड बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करता है जिससे अमोक्सिसिलिन अधिक प्रभावी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होता है? 70 से 80% तक, 80 से 90% तक, 95 से 100% तक, 50 से 60% तक। इसका सही आंसर होता है 95 से 100% तक। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। हेल्दी व्यक्ति के अंदर सैचुरेशन SpO2 आमतौर पर 95 से 100% तक होता है। क्वेश्चन नंबर 91 रिफाम्पिसिन मुख्यतः किस डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है? मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू, टाइफाइड। इसका ट्यूबरकुलोसिस में यूज होता है। रिफाम्पिसिन टीबी ट्रीटमेंट की फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, इसलिए इसको ट्यूबरकुलोसिस में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी ब्लड सेल्स जिम्मेदार होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। इसका सही आंसर होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्लॉट बनाकर ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पांटोप्राजोल किस क्लास की ड्रग होती है? ये पांटोप्राजोल किस क्लास की ड्रग होती है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायूरेटिक। इसका सही आंसर होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। पांटोप्राजोल गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 94 गॉइटर किस मिनरल की कमी से होती है? आयरन, आयोडीन, जिंक, कैल्शियम। इसका सही आंसर होता है आयोडीन।
आयोडीन की डिफिशियंसी से थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, जिससे गटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, जेंटामाइसिन का मेजर साइड इफेक्ट क्या होता है? ओटोटॉक्सिसिटी और न्यूरोटॉक्सिसिटी, हेयर फॉल, वेट लॉस, हाइपरग्लाइसेमिया। जेंटामाइसिन ये ओटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी करता है। जेंटामाइसिन से किडनी और हियरिंग दोनों प्रभावित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, ह्यूमन बॉडी में एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में कौन सा ऑर्गन सबसे महत्वपूर्ण है? स्किन, किडनी, स्प्लीन, स्टोमक। इसका सही आंसर होता है किडनी। किडनी एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 97, एट्रोवास्टाटिन किस कंडीशन से ट्रीटमेंट में यूज होती है? एट्रोवास्टाटिन किस कंडीशन के ट्रीटमेंट में यूज होता है? हाइपरलिपिडेमिया, अस्थमा, डायबिटीज, पेप्टिक अल्सर। हाइपरलिपिडेमिया इसका सही आंसर होता है। एट्रोवास्टाटिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करने के लिए यूज होता है। डेंगू किसके द्वारा फैलती है? हाउस फ्लाई, एडिस मस्कीटो, एनोफिलस मस्कीटो, रैट फ्लाइज। एडिस मस्कीटो से हमारा डेंगू फैलता है। डेंगू वायरस एडिस मस्कीटो से मस्कीटो की काटने से फैलती है। क्वेश्चन नंबर 99, हु का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हाइजीन ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 100, फार्मेसी एक्ट 1948 का मुख्य उद्देश्य क्या है? फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन और प्रोफेशन का रेगुलेशन से हॉस्पिटल्स बनाना, डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग एजुकेशन रेगुलेट करना। इसका सही आंसर होता है फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन और प्रोफेशन का रेगुलेशन। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। फार्मेसी एक्ट 1948 का उद्देश्य फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन और फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करना है। तो ये थे पहला क्वेश्चन, एस्पिरिन का प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ए बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर, बी साइक्लोऑक्सीजिनेज कॉक्स इनहिबिटर, सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डी एसी इनहिबिटर। इसका सही आंसर होता है कॉक्स इनहिबिटर, जिसे बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर। एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। एस्पिरिन कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस कम होती है। क्वेश्चन नंबर 2, ओआरएस का मेन पर्पस क्या है? ए फीवर कम करना, बी डिहाइड्रेशन ट्रीट करना, सी इन्फेक्शन ट्रीट करना, डी पेन कम करना। ओआरएस का काम क्या होता है? आंसर होता है डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट करना। एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। ओआरएस डायरिया के दौरान पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 3, इंसुलिन किस डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है? ए हाइपरटेंशन, बी डायबिटीज मेलिटस, सी अस्थमा, डी ट्यूबरकुलोसिस। इसका सही आंसर है डायबिटीज मेलिटस में। एक्सप्लेनेशन, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 4, पैरासीटामोल का मेजर थेराप्यूटिक यूज क्या है? ए एंटीफंगल, बी एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, सी एंटीवायरल, डी एंटासिड। इसका सही आंसर होता है एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। एक्सप्लेनेशन, पैरासीटामोल पेन और फीवर दोनों को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, पेनिसिलिन किस टाइप का एंटीबायोटिक है? ए माइक्रोलाइड, बी बीटा लैक्टम, सी टेट्रासाइक्लिन और डी अमीनोग्लाइकोसाइड्स। इसका सही आंसर होता है बीटा लैक्टम। एक्सप्लेनेशन, पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ग्रुप में आता है। क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर होता है हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ये सभी को पता है। हार्ट में 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। विटामिन सी की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है? ए में रिकेट्स, बी में स्कॉर्बी, सी में बेरीबेरी, डी में पेलाग्रा। इसका सही आंसर होता है स्कर्वी। एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, नॉर्मल अडल्ट बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? ए 35 डिग्री सेल्सियस, बी 37 डिग्री सेल्सियस, सी 39 डिग्री सेल्सियस, डी 40 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब होता है बी 37 डिग्री सेल्सियस। एक्सप्लेनेशन, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, डिगॉक्सिन मेनली किस कंडीशन में यूज होता है? ए हार्ट फेल्यूर में, बी मलेरिया में, सी पेप्टिक अल्सर, डी माइग्रेन। डिगॉक्सिन इसका सही आंसर होता है हार्ट फेल्यूर में। डिगॉक्सिन मेनली हार्ट फेल्यूर में यूज होता है। एक्सप्लेनेशन, डिगॉक्सिन हार्ट फेल्यूर और कुछ एरिथमियाज में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10,
फार्माकोपिया का पर्पस क्या है? ए, ड्रग एडवर्टाइजमेंट, बी, ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिसिन देना, सी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डी, डिजीज डायग्नोसिस। इसका सही आंसर होता है ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिसिन देना। इसका एक्सप्लेनेशन है फार्माकोपिया मेडिसिन के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 11, हेपारिन किस रूट से दिया जाता है? ए, ओरल, बी, इंट्रावेनस, सी, सबलिंगुअल, डी, इंट्रामस्कुलर। इसका सही आंसर होता है हेपारिन इंट्रावेनस और सबक्यूटेनियस में दिया जाता है। एक्सप्लेनेशन, हेपारिन ओरल रूट से ऑब्जर्व नहीं होता, इसलिए आईवी या सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12, डाइजिपम किस ड्रग ग्रुप से संबंधित है? ए, बेंजोडाइजिपाइन, बी, एनएसएआईडी, सी, एंटीबायोटिक, डी, एंटासिड। डाइजिपम, इसका सही आंसर होता है डाइजिपम बेंजोडाइजिपाइन के ग्रुप में आता है। एक्सप्लेनेशन, डाइजिपम एक बेंजोडाइजिपाइन है जो एंजाइटी, सीजर और मसल स्पाज्म में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 13, मेटफॉर्मिन का यूज किस डिजीज में होता है? ए, हाइपरटेंशन, बी, डायबिटीज मेलिटस टाइप 2, सी, अस्थमा, डी, ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका सही आंसर है डायबिटीज मेलिटस टाइप 2। एक्सप्लेनेशन, मेटफॉर्मिन टाइप 2 डायबिटीज की फर्स्ट लाइन मेडिसिन में जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, वारफारिन किस कैटेगरी की मेडिसिन है? एंटीकोआगुलेंट, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, एंटीवायरल। ये कौन सा ग्रुप में जाता है? कौन सी कैटेगरी में? ये एंटीकोआगुलेंट होता है। इसका सही आंसर होता है एंटीकोआगुलेंट। वारफारिन खून जमने यानी कि ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए दिया जाता है। पेशेंट को जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, कोआगुलेंट की तरफ से वारफारिन को ब्लड क्लॉट करने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए, स्कॉर्बी, बी, रिकेट्स, सी, बेरीबेरी, डी, पिल्लाग्रा। इसका सही आंसर होता है रिकेट्स। एक्सप्लेनेशन, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों में रिकेट्स और एडल्ट्स में ऑस्टियोमालासिया होती है, विटामिन डी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 16, डिगॉक्सिन किस प्लांट से प्राप्त होता है? डिगॉक्सिन ए में डिजिटालिस, बी में सिंकोना, सी, बेलाडोना, डी, अलोय। इसका सही आंसर होता है डिजिटालिस। एक्सप्लेनेशन, डिगॉक्सिन डिजिटालिस प्लांट से प्राप्त एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 17, ओआरएस में ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या है? ओआरएस में ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या है? इन्फेक्शन रोकना, सोडियम ऑब्जर्वेशन बढ़ाना, पेन कम करना, फीवर कम करना। इसका सही आंसर होता है सोडियम ऑब्जर्वेशन बढ़ाना। एक्सप्लेनेशन, ग्लूकोज सोडियम के साथ मिलकर इंटेस्टाइन में पानी और सोडियम के ऑब्जर्वेशन को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 18, अमोक्सिसिलिन किस ग्रुप की एंटीबायोटिक है? ए, पेनिसिलिन, बी, मैक्रोलाइड, सी, अमीनोग्लाइकोसाइड, डी, टेट्रासाइक्लिन। ये पेनिसिलिन की ग्रुप में जाता है। एक्सप्लेनेशन, अमोक्सिसिलिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। क्वेश्चन नंबर 19, नॉर्मल अडल्ट पल्स रेट कितनी होती है? 20 से 40 मिनट। बी, क्वेश्चन नंबर 19, नॉर्मल अडल्ट पल्स रेट कितनी होती है? ए, 20 से 40 पर मिनट, बी, 60 से 100 पर मिनट, सी, 120 से 150 पर मिनट, डी, 150 से 180 पर मिनट। इसका सही आंसर होता है 60 से 100 पर मिनट। एक्सप्लेनेशन, हेल्दी अडल्ट्स में नॉर्मल रेस्टिंग पल्स रेट 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, एट्रोपिन किस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है? ये जो एट्रोपिन होता है ये किस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है? ए, निकोटिनिक रिसेप्टर, बी, मस्कारिनिक रिसेप्टर, सी, डोपामिन रिसेप्टर, डी, हिस्टामिन रिसेप्टर। इसका सही आंसर होता है मस्कारिनिक रिसेप्टर। एक्सप्लेनेशन, एट्रोपिन एक मस्कारिनिक ड्रग है जो पैरासिम्पैथेटिक। एट्रोपिन एक एंटी मस्कारिनिक ड्रग है
जो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। फ्लोसिमेड किस टाइप के ड्रग है? ए डायूरेटिक, बी एंटीबायोटिक, सी एंटीफंगल, डी एंटीवायरल। इसका सही आंसर होता है फ्यूरोसिमाइड एक डायूरेटिक होता है। एक्सप्लेनेशन। फ्यूरोसिमाइड एक लूप डायूरेटिक है जो शरीर से एक्स्ट्रा पानी और सोडियम निकालने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? ए लिवर, बी स्किन, सी हार्ट, डी किडनी। इसका सही आंसर होता है स्किन। एक्सप्लेनेशन। स्किन ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। क्वेश्चन नंबर 23, टेट्रासाइक्लिन किस कंडीशन में अवॉइड की जाती है? टेट्रासाइक्लिन, ये जो टेट्रासाइक्लिन है इसको किस कंडीशन में नहीं दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23, टेट्रासाइक्लिन किस कंडीशन में अवॉइड की जाती है? ए चिल्ड्रन बिलो 8 ईयर्स, बी एडल्ट्स, सी एल्डरली, डी हेल्दी एडल्ट्स। आंसर होता है ए चिल्ड्रन बिलो 8 ईयर्स। इसका एक्सप्लेनेशन, इसे दांतों का परमानेंट डिसकलरेशन और हड्डियों की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 24, सल्बुटामॉल किस डिजीज में यूज होता है? ए डायबिटीज, बी अस्थमा, सी हाइपरटेंशन, डी पेप्टिक अल्सर। इसका आंसर होता है बी, अस्थमा में सल्बुटामॉल को यूज किया जाता है। एक्सप्लेनेशन, सल्बुटामॉल ब्रोंकोडायलेटर है जो सांस की नलियों को खोलता है। सल्बुटामॉल ब्रोंकोडायलेटर है जो सांस लेने में हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं उन्हें खोलता है। क्वेश्चन नंबर 25, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, बी ब्लड क्लॉटिंग, सी इम्यूनिटी, डी डाइजेशन। इसका सही आंसर होता है ए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। एक्सप्लेनेशन, आरबीसी हेमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 26, ओमिप्राजोल किस क्लास की ड्रग है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, बी बीटा ब्लॉकर, सी डायूरेटिक, डी एंटीकोआगुलेंट। इसका सही आंसर होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। एक्सप्लेनेशन, ओमिप्राजोल स्टोमक एसिड सिक्रेशन को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 27, WHO का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी जेनीवा, सी लंदन, डी पेरिस। इसका सही आंसर होता है जेनीवा। एक्सप्लेनेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स जेनीवा स्विट्जरलैंड में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, आयरन डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है? ए एनीमिया, बी स्कॉर्बी, सी रिकेट्स, डी गॉइटर। आयरन की कमी से एनीमिया ही होती है। एक्सप्लेनेशन, आयरन की कमी से हेमोग्लोबिन कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, सिप्रोफ्लोक्सासिन किस ग्रुप का एंटीबायोटिक है? फ्लोरोक्विनोलॉल, बी पेनिसिलिन, सी मैक्रोलाइड, डी सेफालोस्पोरिन। इसका सही आंसर होता है ए फ्लोरोक्विनोनॉल। ए फ्लोरोक्विनोनॉल। एक्सप्लेनेशन, सिप्रोफ्लोक्सासिन डीएनए गायरेज को इनहिबिट करता है। क्वेश्चन नंबर 30, ईसीजी की किस ऑर्गन की एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है? ईसीजी। इसका सही आंसर होता है हार्ट। इसके ऑप्शंस हैं ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, और इसका सही आंसर होता है हार्ट। एक्सप्लेनेशन, ईसीजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जिसे बोलते हैं ईसीजी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 31, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी बेंटिंग एंड वेस्ट, सी लुइस पास्चर, डी रॉबर्ट कोच। इसका सही आंसर होता है बेंटिंग एंड वेस्ट। एक्सप्लेनेशन, फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 32, विटामिन B12 की कमी से क्या डिजीज होती है? ए पर्निशियस एनीमिया, बी रिकेट्स, सी स्कर्बी, डी नाइट ब्लाइंडनेस। इसका सही आंसर होता है ए पर्निशियस एनीमिया। इसका एक्सप्लेनेशन होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक पर्निशियस एनीमिया हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, मॉर्फिन किस कैटेगरी की ड्रग है? ए ओपियोइड एनाल्जेसिक, बी एंटीबायोटिक, सी एंटासिड, डी एंटीफंगल। इसका सही आंसर होता है ओपियोइड एनाल्जेसिक। एक्सप्लेनेशन, मॉर्फिन सीवियर पेन के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 34, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? ए न्यूरॉन, बी नेफ्रॉन, सी अल्वियोली, डी हेपाटोसाइट। इसका सही आंसर होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी की बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 35, एस्पिरिन का मेजर साइड इफेक्ट क्या है? गैस्ट्रिक इरिटेशन, हेयर लॉस, ब्लाइंडनेस, हियरिंग इंप्रूवमेंट।
इसका सही आंसर होता है गैस्ट्रिक इरिटेशन। एक्सप्लेनेशन, एस्पिरिन स्टोमक लाइनिंग को इरिटेट कर सकता है और अल्सर का रिस्क बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 36, सेफिक्सिम किस जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? इसका सही आंसर होता है थर्ड। एक्सप्लेनेशन, सेफिक्सिम थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 37, प्लाज्मा का सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा है? प्लाज्मा का सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और हेमोग्लोबिन? इसका सही आंसर होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन प्लाज्मा का सबसे अबंडेंट प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 38, नाइट्रोग्लिसरीन का यूज किस कंडीशन में होता है? एंजिनल पेक्टोरिस में, डायबिटीज में, अस्थमा में या एपिलेप्सी में? इसका सही आंसर होता है एंजिना पेक्टोरिस। एक्सप्लेनेशन, नाइट्रोग्लिसरीन कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करके चेस्ट पेन को कम करता है, इसलिए नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन अक्सर एंजिनल पेक्टोरिस में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 39, पेनिसिलिन किसे पढ़ते? क्वेश्चन नंबर 39, पेनिसिलिन एलर्जी का सीवियर फॉर्म क्या कहलाता है? एनाफाइलैक्सिस, एनीमिया, आर्थराइटिस और गैस्ट्राइटिस? इसका सही आंसर होता है एनाफाइलैक्सिस। एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन ये होता है एनाफाइलैक्सिस एक लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें तुरंत ट्रीटमेंट जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 40, ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है? 5.5 से 6, 6.5 से 7, सी 7.35 से 7.45, डी 8 से 8.5? इसका सही आंसर होता है 7.35 से 7.45। एक्सप्लेनेशन, ह्यूमन ब्लड का नॉर्मल पीएच हल्का अल्कलाइन होता है, लगभग 7.35 से 7.45। एक्सप्लेनेशन, ह्यूमन ब्लड का नॉर्मल पीएच हल्का अल्कलाइन होता है, लगभग 7.35 से 7.45 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 41, मेट्रोनिडाजोल किस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में अधिक उपयोग किया जाता है? वायरल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल और अनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन? बी, इसका सही आंसर होता है प्रोटोजोअल और एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है। इसका एक्सप्लेनेशन, मेट्रोनिडाजोल एमोबायासिस, गार्डियासिस और एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन डी? इसका सही आंसर होता है विटामिन के। इसका एक्सप्लेनेशन होता है विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन किस डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है? डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, हाइपरटेंशन और अस्थमा? ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक इसका सही आंसर होता है ट्यूबरकुलोसिस। इसका एक्सप्लेनेशन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन एक अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है जो टीबी के ट्रीटमेंट में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 44, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? ए थायराइड, पैनक्रियास, लीवर, पिट्यूटरी? इसका सही आंसर होता है लीवर। लीवर शरीर के सबसे बड़ी ग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 45, आइबुप्रोफेन किस ड्रग क्लास से संबंधित है? एनएसएआईडी, ओपियोइड, एंटासिड और एंटीहिस्टामिनिक? इसका सही आंसर होता है एनएसएआईडी। एक्सप्लेनेशन, आइबुप्रोफेन पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 46, नॉर्मल अडल्ट रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? 8 से 10 मिनट,
8 से 10 पर मिनट, 12 से 20 पर मिनट, 25 से 30 पर मिनट, 35 से 40 पर मिनट। आंसर बी होता है 12 से 20 पर मिनट। हेल्दी अडल्ट की नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है 12 से 20 ब्रेथ्स पर मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 47, हेपारिन का एंटीडोट क्या है? विटामिन के, पोटामिन सल्फेट, एट्रोपिन, नालोक्सोन। इसका सही आंसर होता है बी, प्रोटामिन सल्फेट। प्रोटामिन सल्फेट हेपारिन के एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। कौन सा एंटीबायोटिक सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है? ए पेनिसिलिन, बी एरिथ्रोमाइसिन, सी सिप्रोफ्लोक्सासिन, डी जेंटामाइसिन। इसका सही आंसर होता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस रोकता है। क्वेश्चन नंबर 49, एड्रेनालिन का इमरजेंसी यूज किस कंडीशन में होता है? एनाफाइलेक्टिक शॉक, डायबिटीज, पेप्टिक अल्सर और एनीमिया। इसका सही आंसर होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। एड्रेनालिन एनाफाइलेसिस के फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के रूप में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेप्स, टिबिया, रेडियस। इसका सही आंसर होता है बी, स्टेप्स। एक्सप्लेनेशन, स्टेप्स मिडिल ईयर में होती है और बॉडी की सबसे छोटी बोन है। क्वेश्चन नंबर 51, रानिटिडिन किस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है? H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। इसका सही आंसर होता है रानिटिडिन H2 रिसेप्टर। रानिटिडिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन कम करता है। क्वेश्चन नंबर 52, WBC का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है, हार्मोन सिक्रेशन करता है। इसका सही आंसर होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। WBC शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है। आपको मेरा ये रहे मेरे 52 क्वेश्चंस, उसके सवाल और उसके एक्सप्लेनेशन। सवाल उसके इसी के साथ मेरा 52 क्वेश्चंस इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म होता है। दूसरी पार्ट में मैं और जो बाकी रह गया है वो पार्ट 5 में आप सबको शेयर कर दूंगा। आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज।